everyone, welcome to EduSoft. Today we are going to learn how we can create text editor by using Kinter library. Let me show you first how our output will look like. You can see over here, this is your simple text editor. This is the text area where you can write anything. This is your menu bar. Within menu bar, you have three menus, that is file, edit and about. Within file menu, you have different options like new option, open, save and exit. In edit menu, you have cut, copy and paste. In about menu, you have about. When you click on about, a small message box will appear and it will say anything about your simple text editor which you want. This is the detailed session with all the codes and full explanation. तो क्या हो रहा है कि ये जो आपका सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, इसमें यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन सेव योर फाइल, you can open a new file or you can edit the text in this simple text editor. To start with the code, what we have to do? We have to import the required libraries. So the required libraries for creating the graphical user interface windows in Python is Kinter library. So what we are using, which library we are using? We are using Kinter library here. So what we have to do first? We have to install Kinter library. After installing the Kinter library, what we have to do? We have to import the Kinter library. After that, what I want? I want to import everything from Kinter library. So let's import everything. From Kinter, import everything. This signifies that you are importing everything from Kinter library. After that, I want to import another library, that is RE. RE stands for regular expression. After importing the required libraries, what we have to do? We have to initialize the GUI window. GUI means graphical user interface window. So let's create the root widget, root equal to TK. After that, what we want or what I want to initialize the title of my text editor. So root dot title, and within this, what is the name I want? I want the name as simple text editor. You can have any name you want your text editor to have. Now after that, what I want to initialize the geometry of my text editor like this, root dot geometry 600 into 450. You can have any length, any breadth you want to have. After that, what we have to do? We have to close the main loop to see the output. So this is your output. You are seeing this white box. This is your simple text editor. अभी क्या है? अभी इसमें कोई भी functions ऐड नहीं है. ना इसमें मेन्यू बार ऐड किया है, ना इसमें फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू या अबाउट मेन्यू ऐड किया है, और ना ही अभी इसमें आपका टेक्स्ट एरिया ऐड हुआ है. So this is the simple white box. This is what we call this. This is the graphical user interface window of your simple text editor. Now what I want to add the text area in my simple text editor. For that, write text area equal to text. We are using the text function of Kinter library. So within text function, what you can specify? You can specify the font also. Lucida font, and I want my font size to be 12. Now in this way, you can specify the font and the font size of your text. Now what we are going to do? I am going to specify another variable under the name file name. That would be a empty string. इसका मतलब क्या हुआ? It will open the file which we want to open in the future. तो अभी क्या है? अभी जो आपका text area है उसमें कोई भी file open नहीं हुई है. That's why we initialized file name as an empty string. After that, what we have to do? We have to pack the text area. So for packing the text area, write text area dot pack. Within pack, what arguments I want to give? I want to give two arguments. First argument is expand equal to true. इसका मतलब क्या होता है कि when your graphical user interface window of your simple text editor, जब आपकी window expand होगी, so it will expand to the size of your parent window. जो भी आपकी स्क्रीन है उसकी जो भी साइज होगी,
एक्सपेंड होने के बाद ये उस पेरेंट विंडो की साइज ले लेगी. ओके, नाउ अनदर आर्ग्यूमेंट आई वांट टू स्पेसिफाई एज फिल इक्वल टू बोथ. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी सिंपल टेक्स्ट एडिटर की जो विंडो है वो एक्सपेंड होगी, सो इट विल एक्सपेंड इन बोथ एक्स एक्सिस ऑल्सो एंड इन वाई एक्सिस ऑल्सो. एक्सपेंड होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपकी विंडो सिर्फ एक्स एक्सिस में एक्सपेंड हो रही है या सिर्फ वाई एक्सिस में एक्सपेंड हो रही है. फिल इक्वल टू बोथ का मतलब क्या होता है कि जब आपकी विंडो एक्सपेंड होगी तो वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में एक्सपेंड होगी. Let's run this code and see what will be our output. So this is your output. This is the simple text editor. अब क्या हुआ है इस text editor में, जो आपका text area है वो add हो गया है. So यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. Okay. Now what I want. अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा इस साइड पे एक स्क्रॉल बार और ऐड हो जाए. किस साइड पे ऐड हो? वो इस साइड पे ऐड हो. तो ये कौन सी साइड है? ये राइट साइड है. और ये कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है. तो मैं चाहती हूं कि मेरा स्क्रॉल बार जो मेरी विंडो है सिंपल टेक्स्ट एडिटर की, उसके राइट साइड में आए और उसके वाई एक्सिस पे इंक्लाइंड हो. सो लेट्स क्रिएट अ स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार इक्वल टू स्क्रॉल बार, राइट? And where I want to place this scroll bar, I want to place this scroll bar in the text area like this. After that, what we have to do, we have to pack the scroll bar at the desired location. Let's pack the scroll bar dot pack. Now where I want to pack my scroll bar, मैंने क्या कहा था कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी scroll bar की साइड हो वो कौन सी साइड हो? वो राइट साइड हो. ओके, आफ्टर दैट मैं क्या चाहती थी कि जो मेरा एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस रहे? वो वाई एक्सिस रहे, राइट? तो क्या होगा इससे, जो आपका स्क्रॉल बार है वो आपके टेक्स्ट एरिया के राइट साइड पे आ जाएगा और किस एक्सिस पे इंक्लाइंड रहेगा? वो वाई एक्सिस पे इंक्लाइंड रहेगा. आफ्टर दैट हमारे दो सिंटेक्स होते हैं जो कि वी हैव टू गिव टू इनिशियलाइज द स्क्रॉल बार. अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे स्क्रॉल बार को कॉन्फ़िगर. तो लेट्स कॉन्फ़िगर द स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फ़िगर नाउ. कमांड क्या है हमारा? कमांड है टेक्स्ट एरिया डॉट वाई व्यू. So where I am placing this text bar, I am placing this text bar in the y axis of my text area. What we have to do, we have to set this scroll bar to the text area. So text area dot configure. Now command as y scroll command equal to scroll bar dot set. Okay. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा स्क्रॉल बार है वो हमारे टेक्स्ट एरिया के राइट साइड पे और y एक्सिस पर सेट हो गया है. लेट्स चेक दिस स्क्रॉल बार कि हमारा स्क्रॉल बार ऐड हुआ है या नहीं ऐड हुआ है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्क्रॉल बार है ये हमारा ऐड हो चुका है. ये स्क्रॉल बार आ गया. इन दिस वे वी कैन स्क्रॉल आवर टेक्स्ट और स्क्रॉल आवर टेक्स्ट एरिया. Till now what we have created a simple text editor having a text area and the scroll bar. Now what I'm going to do, I'm going to define functions of the file menu, edit menu and about menu. So these are the functions for the file menu, edit menu and about menu. In file menu you can see new, open, save and exit. In edit menu you can see cut, copy, paste. And for about menu you have function, about function. Now what we are going to do, we are going to create or we are going to add the menu bar. Let's add the menu bar first. So let's name this text editor menu equal to menu. We are using the menu function of Kinter library. We have to configure the menu or we can say text editor menu. After that, what we have to do? We have to add the file menu to the menu bar or text editor menu. Okay. So for that, what we have to do? We have to create the file menu. So let's create file menu equal to menu. So we are using the menu function of Kinter library. Where I want to add this file menu. I want to add this file menu in the text editor menu or we can say the menu bar. We have to cascade it with menu bar under the label file.
तो टेक्स्ट एडिटर मेन्यू डॉट एड कैस्केड कि मेन्यू बार में किस नाम से अपियर होगा, फाइल नाम से अपियर होगा, क्योंकि जो लेबल है वो हमारा क्या है, वो फाइल का लेबल है। इसके बाद क्या होगा कि जो फाइल मेन्यू के जितने भी कमांड्स थे, न्यू, ओपन, सेव एंड एग्जिट, नाउ आई वांट टू ऐड ऑल दीज कमांड्स टू द फाइल मेन्यू। तो कमांड को फाइल मेन्यू में ऐड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द ऐड कमांड ऑफ किंटर लाइब्रेरी। फाइल मेन्यू में व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू ऐड कमांड। व्हाट फंक्शन आई एम गोइंग टू ऐड इन द फाइल मेन्यू, फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या था, हमारा न्यू का फंक्शन था। अब हमारा कमांड क्या है, यानी हमारा फंक्शन किस नाम से है, हमारा फंक्शन न्यू नाम से है, राइट। सेकेंड कमांड हमारा ओपन का कमांड था, तो लेबल क्या होगा, ओपन का लेबल होगा, कमांड क्या होगा, ओपन कमांड होगा, राइट। हमारा थर्ड जो फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन था, न्यू, ओपन एंड सेव। कमांड क्या रहेगा, कमांड हमारा सेव का हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन था, हमारा एग्जिट का फंक्शन था। तो लेबल क्या आएगा, एग्जिट का लेबल आएगा। कमांड क्या था हमारा, एग्जिट ही हमारा कमांड था, राइट। Now we have completed all the functions new, open, save and exit. Actually we have added all the functions or all the commands to the file menu. Now what I want कि जो मेरा new का कमांड है उसके बाद में एक सेपरेटर आए, उसके बाद मेरा open का कमांड आए, उसके बाद फिर से एक सेपरेटर आए, उसके बाद मेरा सेव का कमांड आए और सेव के कमांड के बाद भी मेरा एक सेपरेटर आए। So to add the separator between all the commands, what we have to do, we have to use the function dot add separator. In this way, we are going to add separator between each command of the file menu. I'm going to copy this entire syntax and I'm going to paste over here. So in place of file menu, what I'm going to write, I'm going to write edit menu. तो हमारा इस हिसाब से edit menu create हो गया है। Same मेन्यू में इनिशियलाइज होगा, टेक्स्ट एडिटर मेन्यू में जाएगा। टेक्स्ट एडिटर मेन्यू में हमने क्या किया, कैस्केड किया हमारे एडिट मेन्यू को। लेबल क्या रहेगा, हमारा लेबल रहेगा एडिट का, राइट। उसके बाद में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड फंक्शंस टू द एडिट मेन्यू। तो सेम सिंटेक्स यूज होगा आपके फंक्शंस के लिए। कितने फंक्शंस थे हमारे, 3 फंक्शन थे। कौन कौन से, कट, कॉपी एंड पेस्ट, राइट। So in place of file, what we have to write? We have to write edit. Now, जो हमारा पहला कमांड था एडिट मेन्यू का, वो कौन सा कमांड था, हमारा कट का कमांड था। लेबल क्या चाहती हूँ मैं, कट का लेबल चाहती हूँ, और कमांड क्या था मेरा, कट का कमांड था। कट, कॉपी, कॉपी का कमांड था। सो लेबल क्या रहेगा, कॉपी का। थर्ड हमारा कमांड था पेस्ट का, लेबल क्या रहेगा, पेस्ट का। एडिट मेन्यू है वो क्रिएट हो चुका है। एडिट मेन्यू में जो हमारे फंक्शंस थे वो भी हमारे एडिट मेन्यू में ऐड हो चुके हैं। क्रिएट द अबाउट मेन्यू, सेम सिंटेक्स होगा। सो आई एम गोइंग टू कॉपी द अपर सिंटेक्स एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट ओवर हियर। एडिट मेन्यू की प्लेस पे क्या आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा। लेबल क्या रहेगा हमारा, लेबल अबाउट का लेबल रहेगा, राइट। एंड मेन्यू क्या था हमारा, अबाउट मेन्यू। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारा अबाउट मेन्यू था वो क्रिएट हो चुका है। Now what we are going to do, we are going to add the about command to the edit menu. Same syntax रहेगा, I am going to copy and paste over here. ठीक है, लेबल क्या रहेगा हमारा, लेबल about का रहेगा, राइट। कमांड क्या था, यानी फंक्शन किस नाम से था, फंक्शन about के नाम से था, ओके। सो अब तक हमारे मेन्यू बार क्रिएट हो चुका है। फाइल मेन्यू में जो भी फंक्शंस हैं आपके न्यू, ओपन, सेव एंड एग्जिट, वो ऐड हो चुके हैं। एडिट मेन्यू क्रिएट हो चुका है। एडिट मेन्यू के जो भी फंक्शंस हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट, वो ऐड हो चुके हैं एडिट मेन्यू में। अबाउट मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अबाउट मेन्यू का जो एक फंक्शन था अबाउट का, वो अबाउट मेन्यू में ऐड हो चुका है। और ये जो तीनों मेन्यूज हैं आपके, फाइल, एडिट एंड अबाउट, ये तीनों मेन्यू आपके मेन्यू बार में ऐड हो चुके हैं। और मेन्यू बार कहाँ पे ऐड हुआ है, मेन्यू बार आपका टेक्स्ट एरिया, यानी जो आपका सिंपल टेक्स्ट एडिटर है वहां पर ऐड हुआ है। तो ये आपका जो आउटपुट है, ऐसा आपका आउटपुट आएगा। अब आप देखो, ये आपका सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, ये आपका टेक्स्ट एरिया है, हियर यू कैन राइट एनीथिंग। ये आपका स्क्रॉल बार है,
ये आपका मेन्यू बार है और आपके 3 मेन्यूज है, फाइल, एडिट और अबाउट मेन्यू आपके मेन्यू बार में ऐड हो गए हैं। फाइल मेन्यू में जो आपके फंक्शंस हैं वो ऐड हो चुके हैं, एडिट मेन्यू में जो फंक्शन है वो ऐड हो चुके हैं, अबाउट में जो भी फंक्शन है आपका अबाउट मेन्यू का वो ऐड हो चुका है। बेसिक लेआउट है किसका, सिंपल टेक्स्ट एडिटर का, वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जो भी हमारे ये ऊपर फंक्शंस थे, न्यू, ओपन, सेव, एग्जिट, कट, कॉपी, पेस्ट और अबाउट के, नाउ वी आर गोइंग टू सी दीज फंक्शंस फ्रॉम किंटर, import message box, right? Now from printer dot file dialog, import what I want to import. I import ask open file and I also want to import ask save as file. Coming to about function of the about menu, what I want that when I will click on the about function or say about option, a small message box is to appear which will have the information about the simple text editor. So here I am using message box dot show info method of Kinter library. Message equal to message box dot show info. Within show info, what we have to give as an argument, the first argument is the heading and I want to give heading as about, and the second argument here is the information you want to show. I want to show information as simple text editor created by Adosoft. So this is the information I want to show when the message box will appear after clicking on the about function or say about option of the about menu. And you can say output as here, this is the simple text editor, this is your about menu and this is your about function or the about option. When I click on this about here, this is small message box is appearing and you can see this heading as about and information as simple text editor created by Adosoft. Coming to edit menu functions, first function for the edit menu is the cut function. We have seen that when we select the text and press the cut option, the selected text get copied first and after that it is deleted. So coming to the code, लॉजिक हमारा इस कोड में क्या लग रहा है कि जब भी आपका कोई टेक्स्ट है एंड व्हेन यू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट टू कट इट, तो उससे पहले क्या होता है कि आपका सेलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है वो कॉपी होता है और कॉपी होने के बाद जितना भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो वहां से डिलीट हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कॉपी दैट टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट. So for deleting the selected text, text area dot delete and in delete के अंदर क्या argument आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं delete the characters between index 1 and index 2. Here index 2 is not included. तो जो भी आपका selected text है वो first index से लेके last index तक जितना भी आपका text होगा वो सारा delete हो जाएगा. First and selected text last. In this way, we can put the logic in the cut function for the edit menu. Coming to another function of edit menu, that is the copy function. इस function का logic क्या होगा? See, when you select the text and copy the text, what it will do? It will create the TK space and it will insert the selected text in that TK space. मेरा logic इस copy function में क्या होगा? First of all, TK space is being created. We have to create the TK space and after that we cleared that space. अगर उस space में पहले से कुछ copy रहा होगा तो उसके लिए what we have to do? We have to clear that space. After that we create a variable and get all the selected text in that variable and then we append that variable in the text area space. After that, what we are doing, we are creating a variable named cd equal to text area dot get selected first selected last. हमने क्या किया कि जो भी हमारा टेक्स्ट है सेलेक्टेड फर्स्ट से लेके लास्ट का
वो हमने हमारे वेरिएबल cd में ले लिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अपेंडिंग दैट वेरिएबल in the text area space. So this is my logic behind copy function. You can have your own logic and create the program accordingly. Coming to the next function of edit menu, that is the paste function. We took the variable cd in which we stored the copy text which we have selected. Now what we have to do, we have to paste that selected text in the text area. For that, what I am doing, I am taking the same variable cd equal to text area dot selection get within bracket what you have to write, selection equal to clipboard. तो जो आपका टीके स्पेस क्रिएट हुआ था उसमें जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो स्टोर हुआ था, उस टीके स्पेस से हमने सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ लिया, cd वेरिएबल में लिया, और हमने क्लिपबोर्ड यानी उस टेक्स्ट एरिया में cd वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट स्टोर था उसको किया अपेंड. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन द पेस्ट फंक्शन, वी आर टेकिंग द सेम वेरिएबल cd, और जो आपका टीके स्पेस में टेक्स्ट अब स्टोर था जो अपेंड हुआ था उसको हमने दोबारा से कहाँ लिया, हमने दोबारा से cd वेरिएबल में लिया. आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, we are inserting the text in the cd in the text area. तो cd वेरिएबल में जो भी अब आपका टेक्स्ट है उसको हमने कहाँ पर स्टोर करा रहे हैं, अब हम उसको टेक्स्ट एरिया में इंसर्ट करा रहे हैं. तो कैसे कराएंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट विद इन ब्रैकेट व्हाट यू हैव टू राइट, इंसर्ट कॉमा cd. सिंपल टेक्स्ट एडिटर का जो टेक्स्ट एरिया है उसमें कौन सा टेक्स्ट आ जाएगा, जो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हुआ था एज अ कॉपी वही टेक्स्ट आपका एज अ पेस्ट टेक्स्ट एरिया में इंसर्ट हो जाएगा. दिस इज ऑल दी पेस्ट फंक्शन. दिस इज माय लॉजिक, यू कैन हैव योर ओन लॉजिक. तो हमारा जो एडिट मेन्यू था वो कंप्लीट हो चुका है. ओके और हमारे एडिट मेन्यू में जो भी फंक्शंस थे कट कॉपी एंड पेस्ट के वो भी कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब हम आते हैं हमारे फाइल मेन्यू के जो फंक्शंस है उस पे. तो जो पहला फंक्शन है हमारा वो किसका है, वो न्यू का फंक्शन है. अब यहाँ पे हमारा जो लॉजिक रहेगा कोड का वो क्या रहेगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं. तो लॉजिक हमारा ये रहेगा कि सपोज अगर मैंने प्रेस किया न्यू को, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरी विंडो है यानी जो मेरा टेक्स्ट एरिया है वहां पे कोई भी टेक्स्ट ना हो. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा सिंपल टेक्स्ट एडिटर की विंडो है वहां पे ऑलरेडी कोई टेक्स्ट रहे. तो हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आने वाली है इफ की कंडीशन, कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट वहां पे रहेगा तो क्या होगा कि एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जो हमसे पूछे कि डू यू वांट टू सेव दिस, वहां पे यस या नो आए. अगर मैं नो पे मेरा क्लिक हो तो वो तुरंत हट जाए जो भी वहां से टेक्स्ट है और एक नई फाइल ओपन हो जाए या एक नया विंडो ओपन हो जाए. अगर मैं वहां पे प्रेस करती हूँ यस को तो क्या होगा कि जो हमारा सेव वाला फंक्शन हो वो एग्जीक्यूट हो जाए. तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल नेम्ड फाइल नेम. ओके हमने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया, नाम क्या था फाइल नेम का. उसके बाद हमारा क्या लॉजिक रहेगा, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट अगर वहां पे कोई टेक्स्ट है मेरा टेक्स्ट एरिया में तो आई वॉन्ट टू नो दैट थिंग. तो उसके लिए क्या मुझे करना होगा, आई वॉन्ट टू नो द लेंथ, कि अगर जो मेरा टेक्स्ट है अगर उसकी जो लेंथ है वो 0 हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा टेक्स्ट एरिया है वहां पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है. अगर मेरा वहां की लेंथ मोर देन 0 हुई यानी जो आपका विंडो है टेक्स्ट एरिया का वहां पे अगर कोई टेक्स्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसकी लेंथ है वो मोर देन 0 होगी. तो वहां पे कोई टेक्स्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, एक स्मॉल मैसेज बॉक्स अपीयर होगा सेव का, यस या नो का. तो लेट्स क्रिएट अ कोड और लेट्स क्रिएट अ लॉजिक. I have to use get method for that. It will return the text from index 1 to index 2 not included. Not included ब्रैकेट का क्या मतलब है कि जो आपका लास्ट का इंडेक्स होगा वो इंक्लूडेड नहीं होता है. तो क्या हुआ कि अगर ये जो लेंथ है कैरेक्टर्स की वो ग्रेटर देन 0 हुई तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट एरिया में अभी हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है. तो उसके बाद व्हाट आई वांट कि एक मैसेज आए यानी एक मैं और लॉजिक लगाना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके बाद क्या होगा, एक हमारे पास मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, रहेगा चूज राइट
एंड उसके बाद उस पे क्या लिखा होगा, उस पे लिखा होगा डू यू वांट टू सेव, डू यू वांट टू सेव। अगर इस पे मैंने क्या किया, अगर मैंने इस पे यस किया तो इसका मतलब क्या है कि जो सेव फंक्शन है मेरा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर मैंने इस पे नो किया तो जो मेरा सेव फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, एल्स में मेरा क्या आएगा, एल्स में मेरा आएगा कि जो भी टेक्स्ट है वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो टेक्स्ट एरिया डॉट डिलीट, हमने कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज किया, डिलीट फंक्शन। अब मैं क्या चाहती हूँ कि वो टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक डिलीट हो, it will delete the characters between index 1 and index 2. Index 2 here is not included. तो मैं चाहती हूँ कि 1.0 जो भी हमारा पहली लाइन पहला कैरेक्टर है वहां से लेके एंड तक जो भी कैरेक्टर है यानी जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, वो डिलीट हो जाए। ओके, उसके बाद में क्या चाहती हूँ कि जो मेरा टाइटल है वो टाइटल क्या रहे, वो सेम टाइटल ही रहे। ठीक, अब हम आते हैं ओपन फंक्शन पे, राइट। सो अब यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक रहेगा, यहाँ पे लॉजिक रहेगा कि जो भी हमारी फाइल ओपन रहेगी वो एक रीड मोड में ओपन रहेगी। उस फाइल को हमने क्या किया, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर है कराया। अब डेटा नाम के वेरिएबल में जो डेटा डॉट रीड फंक्शन से वो फाइल ओपन रहेगी, यानी एक रीड मोड में वो फाइल ओपन रहेगी, उसका जो टेक्स्ट है वो हमने कहाँ पे स्टोर किया, वो हमने टेक्स्ट में स्टोर किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा टेक्स्ट एरिया है हमने क्या किया कि जो उस टेक्स्ट है यानी उस फाइल का डेटा फाइल का जो टेक्स्ट है जो कि टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर था उसको हमने क्या किया, टेक्स्ट एरिया में उसको इंसर्ट कराया। उसके बाद जो हमारी फाइल थी यानी जो डेटा नाम से यानी जो डेटा वेरिएबल में जो फाइल थी उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज। तो ये हमारा एक सिंपल सा लॉजिक रहेगा। सो लेट्स क्रिएट डेटा इक्वल टू फाइल डायलॉग। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, फाइल डायलॉग का मेथड यूज किया है। I want to store that text into the text variable. Now data dot read. Now what I want to append or insert this text into the text area. So text area dot insert कि जो भी हमारी डेटा फाइल है वी आर गोइंग टू क्लोज दैट। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है सेव का फंक्शन। तो आपने देखा होगा कि जब आपका टेक्स्ट एडिटर होता है उस पर हमारा कोई भी टेक्स्ट है, when I'm going to save that thing, so it will ask whether you want to save that in all files or you want to save that in .txt format or you want to save that in .py format, right? So for this, what I'm going to do, I'm going to create a variable and I'm going to store all the file types in that variable, like in this way. After that, what I want to do, I want to save. What we have to do, we have to use ask save as file method of Kindle library, and in ask save as file what I'm going to give as an argument, what you have to give as an argument, here you can see it will ask for a file name to save as and return the open file. So you have to give the file type as an argument and you have to give the default extension as an argument. नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आता है, एग्जिट का फंक्शन आता है। इसमें क्या होगा, इसमें ऑल आई वांट टू डिलीट कि एग्जिट, व्हेन आई क्लिक ऑन दी एग्जिट ऑप्शन तो जो भी मेरा वहां पे टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, जितना भी टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाए। 0 लाइन 0 कैरेक्टर से लेके मेरा एंड तक जितना भी टेक्स्ट है वो सारा क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो हमारे जितने भी फंक्शंस थे वो क्रिएट हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। Now what I'm going to do, I am going to run this code and see if it works. So this is our simple text editor having menu bar. Here it is your text area and this is your scroll bar. In menu bar you can see different menus, like we have file menu, edit menu and about menu. Within file menu you can see new, open, save and exit function. Within edit menu you have cut, copy and paste. Within about menu you have about function. When I click on about function you can see a small message box appears and it carry all the information about the simple text editor. इसमें ये क्या है, about, ये heading है simple text editor made by Edusoft. What is this? This is the information about the simple text editor
I want to show. Now I'm going to write one line. Coming to edit function, first of all, we have cut option, then copy option, and then paste option. I'm going to select the text, and after that, I'm going to apply cut option from the edit menu. And you can see your cut option works. Let's select this text, and I'm going to apply the copy option, and after copy option, I'm going to apply the paste option. Now you can see your paste option also works. So in this way, in this simple text editor, edit menu के अंदर जितनी भी options हैं आपके cut, copy and paste के, वो सारे options हमारे work कर रहे हैं. Coming to file menu में जो हमारे options हैं, new, open, save and exit. Coming to new option, when I click on the new option, तो हमारा logic क्या था कि अगर हमारा text area है उसमें कोई text already written है, so a small message box will appear which will ask, do you want to save? If I press yes, then the save option of the file menu will going to work. If I click on no, then all the text will delete. Coming to save option of the file menu, and you can see during save option, in save as type में आप देख रहे हो कि ऑल फाइल्स भी आ रहा है, पाइथन फाइल्स भी आ रहा है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, क्योंकि जब हमारा फाइल टाइप्स का आर्ग्यूमेंट था, देयर वी गेव ऑल दी फाइल्स, ऑल फाइल्स, पाइथन फाइल्स एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल एज एडुसॉफ्ट टेक्स्ट एडिटर and your file is being saved. So in this way you can see the new option and the save option of the file menu works very properly. Coming to exit function, if I click on the exit, all the text disappears from the text screen. Now coming to open option of the file menu, when I click on open, I want to open the Notepad first file in my simple text editor, and you can see the open function of the file menu works very properly. So this is your simple text editor. In this text editor, you can write anything, you can edit your text, even that you can save your text. It is same as the Notepad. I will provide the full code in the description of this video. If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much.